Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Muzaffar Ali Memon, lecturer in chemistry at Government Boys Degree College, Thatta. You are watching Sindh College Lectures YouTube channel. It's my first lecture. In this lecture, I will discuss some topics of chapter number 1 of intermediate chemistry. The name of the chapter is periodic classification. This is the first chapter of class inter. In the universe, 118 elements have been discovered till today. Each of these elements possesses different properties. It is difficult to understand and use the properties of each element at a time. In order to seek the work, scientists started thinking about methods so that the study of elements can be simplified. Hence, attempts were made to discover ways to learn the properties of elements in a systematic order. जैसे कि हमें पता है कि इस वक्त तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और हर एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं और इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एट ए टाइम पर डिस्कस करना, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। क्लासिफिकेशन की जरूरत महसूस इसीलिए हुई कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच कर रही है उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा जाए ताकि उसकी स्टडी को आसान बनाया जाए। उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखने के लिए मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स किए गए कि किस तरीके से एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जाए। Before discussing attempts were made by different chemists for the classification of elements, let's learn some basic terms. What is classification? The act or process of dividing things into group or class according to their type is called classification. The method of arranging similar elements in the same group and separating them from dissimilar element is called classification of the elements. Classification of elements के वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, एक दूसरे से मिलती है, उनको एक ग्रुप या एक क्लास में रखा जाए और वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज उनसे नहीं मिलती उनको उनसे अलग किया जाए। The aim of classification is to arrange elements in the systematic order. जो क्लासिफिकेशन का मेन मकसद था कि एलिमेंट्स को उन एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के तहत रखा जाए। The repetition of properties of elements after regular interval of period or time is called periodic classification or periodicity. ये जो वर्ड पीरियडिक है ये पीरियड से निकला हुआ है। पीरियड का मतलब टाइम, वक्त। अगर हम एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखें तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद। इसीलिए इसको पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या पीरियडिसिटी भी कहते हैं कि अगर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक नंबर, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वर रिपीटेड after some interval of time. Dobereiner tried, a German chemist and professor. Dobereiner's attempt at classification of elements are generally considered the first recorded attempt. इससे पहले अल-राजी ने एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्लासिफाई किया था, लेकिन जो पहला रिकॉर्डेड अटेम्प्ट है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का वो इस जर्मन केमिस्ट डोबेरीनर ने सरंजाम दिया था।
इसने क्या किया, he made small group of 3 elements called triad and proposed law or rule of triad. इन्होंने 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल छोटे छोटे ग्रुप बनाए और उनको इन्होंने रूल ऑफ ट्राइड या लॉ ऑफ ट्राइड का नाम दिया. He realized when you arrange these 3 elements according to their atomic weights, the atomic mass of the middle element in a triad is approximately arithmetic mean of other 2 elements. इन्होंने ये महसूस किया कि जो ट्राइड में मौजूद 3 एलिमेंट्स हैं उनको उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से तरतीब में रखें तो जो मिडिल एलिमेंट का मास होगा वो बाकी 2 एलिमेंट्स के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा. यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, 2 एग्जांपल्स मेरे यहाँ पर दिए हुए, एक लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम का है, दूसरा क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन. पहला जो एग्जांपल है वो अल्कली मेटल्स में से लिया गया है और दूसरा जो एग्जांपल है वो हैलोजन में से लिया गया है. लिथियम atomic mass is 7, sodium atomic mass of 23 and potassium atomic mass of 39. ये पहला ट्राइड है, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि if we add 7 into 7 in 39, 7 plus 39, the answer will be 46. इनको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 23 and 23 is the atomic mass of the middle element and the middle element of the triad. A first example is sodium. So statement क्या थी लास्ट में आप देखें, atomic mass of the middle element in a triad is approximately arithmetic mean of other 2 elements. दूसरा एग्जांपल है क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन. The atomic mass of the chlorine is 35.5. The atomic mass of the iodine is 126.5. You can sum 35.5 plus 126.5. तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 162. 162 divided by 2, the answer will be 81, and 81 is the atomic mass of the bromine. ये 2 एग्जांपल हैं ट्राइड के जिसमें हम समझ सकते हैं कि इन्होंने जो रूल दिया था या लॉ ऑफ ट्राइड या रूल ऑफ ट्राइड कहा जाता है कि मिडिल एलिमेंट का मास ट्राइड में मौजूद बाकी 2 एलिमेंट्स के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा. लेकिन ये जो लॉ है ये फकत कुछ एलिमेंट्स पर अप्लाई हो जाता है क्योंकि उस वक्त बहुत थोड़े एलिमेंट्स थे जब डॉबरिनर ने ये अटेम्प्ट किया था. लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरीज होती गई तो ये जो लॉ है उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते. This law cannot be extended to the classification of all the elements because it can be applied on very few elements. जिसकी वजह से ये जो लॉ या रूल था या इसकी क्लासिफिकेशन फेल हो गई. उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट न्यूलैंड ने किया था. न्यूलैंड के इस अटेम्प्ट को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है. ऑक्टेव ऑक्टा से निकला हुआ है, मीन्स के 8. In 1864, John Newland proposed a law which is called Newland's law of octave, which states that if elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the properties of every 8th element were similar as first one. अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के हिसाब से रखेंगे तरतीबवार तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच करेगी. He called this regularity of element as law of octave. आप देख सकते हैं यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. लिथियम का मास 7, mass of beryllium is 9, boron 11, carbon 12, nitrogen 14, oxygen 16, fluorine 19, and sodium 23. The properties of the lithium and sodium are similar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now come to the 8.
हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन से मैच करती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? लिथियम और सोडियम को अगर हम देखें तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, इनकी वैलेंसी 1 है व्हेन दे कंबाइन विद हैलोजेंस टू फॉर्म साल्ट्स। इसी तरीके से हम किसी को भी अगर एग्जांपल मिले, सपोज वी आर टेकिंग ऑक्सीजन इज नंबर 1, सो 1 for oxygen, second fluorine, third sodium, fourth magnesium, fifth aluminum, sixth silicon, seventh phosphorus and eighth sulfur। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज सल्फर से मिलती है, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों नॉन मेटल्स हैं। इसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। इस रेगुलरिटी को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मौसीकी में म्यूजिक के 7 नोट हैं, जो 8वां नोट है म्यूजिक का वो फर्स्ट वन से मैच करता है, सा रे गा मा पा दा नी फिर सा। तो ये सा जो फर्स्ट एंड एट्थ जो है वो सिमिलर है। इसी तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स की इस तरीके से तरतीब दी। He classified the elements in the increasing order of atomic masses. What are the advantages and disadvantages? Advantages of Newland's law of octave. This law provided the basis for the classification of elements into group of similar properties. सिंपल सी बात है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जो बेसिस है कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको सेम ग्रुप में रखा जाए और वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है उनको उनसे सेपरेट किया जाए। This law provided the wide scope for the arrangement of all known elements in a tabular form. इस लॉ की मदद से एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में रखने का टेबुलर फॉर्म में रखा गया, जो जितने भी उस वक्त तक एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। Recurrence of chemical and physical properties at regular interval and provided a great idea towards the development of modern periodic table। ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ये बिल्कुल इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक रिकरेंस है या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, जिसकी वजह से हम इसको पीरियडिक टेबल कहते हैं या पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये एक आइडिया जो है वो डेवलप कर रहा है हमारे यहाँ कि किस तरीके से एलिमेंट्स को एक तरतीबवार उसके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के हिसाब से रखेंगे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होगी, इसको हम पीरियडिसिटी भी कहते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दिस लॉ फेल्ड बिकॉज इट हेल्ड गुड फॉर फर्स्ट 16 एलिमेंट्स बट डिड नॉट वर्क आफ्टर 17th एलिमेंट्स। ये आप देख सकते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये जो 16 एलिमेंट हैं इनके लिए ये लॉ अप्लाई हो सकता है। अगर हम कैल्शियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट इस वक्त न्यू पीरियडिक टेबल में है वो है स्कैंडियम। स्कैंडियम को हम उसकी प्रॉपर्टीज बोरान से नहीं मिलती है, बोरान फैमिली से नहीं मिलती। इसके नेम के बाद वेनाडियम है, वेनाडियम की प्रॉपर्टीज कार्बन फैमिली से नहीं मिलती। इसी तरीके से जो कैल्शियम के बाद के एलिमेंट हैं उनको हम इस तरीके से अरेंज नहीं कर सकते। सो दिस लॉ डिड नॉट इंक्लूड नोबल गैसेस एंड हाइड्रोजन। इस वक्त जो पीरियडिक टेबल है उसमें फ्लोरीन के फौरन बाद नियॉन आ जाता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, उसका मास तकरीबन 20 है, उसके बाद सोडियम का नंबर आता है। अगर हम इस तरीके से तरतीब दें कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन से मैच हो रही है तो फिर लिथियम का जो 8वां एलिमेंट काउंट होगा, अगर नोबल गैसेस को हम यहाँ पर रखें, अरेंज करें, तो वो 8वां एलिमेंट नियॉन हो जाएगा। नियॉन और लिथियम की प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फर्क है, इसीलिए ये जो लॉ है वो उसको ज्यादा सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई किया नहीं जा सकता। उसके अलावा हाइड्रोजन भी उस वक्त डिस्कवर नहीं थी, उसको भी इस पीरियडिक टेबल में इस लॉ में अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। उसके बाद
Mendeleev's classification. Mendeleev started his work in the 1800 when 63 elements were known to chemists. तकरीबन 1869 ये जो पीरियड है 19वीं सेंचुरी है जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया और उस वक्त तकरीबन 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे. Mendeleev's periodic table was the extension of Newland's law of octave. Mendeleev की जो periodic table है वो बिल्कुल न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की एक्सटेंशन है. उसमें क्योंकि मेंडलीव ने अपना एक पीरियडिक लॉ दिया था और उन्होंने भी इसी तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया था जिस तरीके से न्यूलैंड ने किया था, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. He classified the elements into 12 horizontal rows called periods and 8 vertical columns called groups. उन्होंने 12 horizontal rows की तरतीब दी थी जिनको पहले सीरीज कहा जाता था, अब पीरियड्स कहते हैं, और 8 वर्टिकल कॉलम थे जिनको ग्रुप्स का नाम दिया गया. This was the most successful attempt among all the earlier attempts at classification of elements. ये जो अटेम्प्ट था एलिमेंट्स को उस तरीके से ग्रुप्स और पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये मोस्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट था, मोस्ट कामयाब अटेम्प्ट था. इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट ने या केमिस्ट ने पीरियडिक टेबल की क्लासिफिकेशन की. He had noticed a relation between atomic masses of elements and their chemical and also physical properties. इन्होंने एटॉमिक मासेस और एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के रिलेशन को नोटिस किया. He put forwarded his periodic law which states that physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic masses. इसका मतलब यह है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के हिसाब से रखेंगे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ पीरियड. इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर or ascending order of their atomic weights, the properties of the elements will be repeated after some interval of time, after some interval of period. ये इसकी पीरियडिक लॉ था जिसको मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ कहा जाता है. Importance of Mendeleev's periodic table. He divided elements into groups and periods. जैसे हमने डिस्कस किया, एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया. वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप्स का नाम दिया और हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने पीरियड्स का नाम दिया. एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. हर ग्रुप में एलिमेंट्स जो थे उनकी प्रॉपर्टी सेम थी. जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको सेम ग्रुप में रखा गया. He left vacant spaces in his table for unknown elements. ये जबरदस्त इसका काम था कि उन्होंने अपने पीरियडिक टेबल में कुछ जगहें खाली छोड़ी हुई थी और जिनके लिए उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और उनको इन वैकेंट स्पेसेस में रखा जाएगा. He predicted the properties of unknown elements. ना फकत उन्होंने उनके लिए खाली जगहें छोड़ी बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी जो है वो प्रिडिक्ट किया कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनकी ये प्रॉपर्टीज होंगे और वो यहाँ पर रखे जाएंगे. He proposed their names as Eka boron, Eka aluminium and Eka silicon. Eka बोरान के बाद जो अभी डिस्कवर हो चुका है जिसको स्कैंडियम का नाम दिया गया, और एका एल्यूमिनियम गैलियम और एका सिलिकॉन जर्मेनियम. ये जो तीन एलिमेंट्स जिनके लिए इन्होंने खाली जगह छोड़ी थी और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी प्रिडिक्ट किया था कि कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो यहाँ पर रखे जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज ऐसी ऐसी होंगी, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ. इन्होंने जैसी प्रॉपर्टीज बताई थी वैसी ही प्रॉपर्टीज इन एलिमेंट्स में पाई गई और उन्हीं जगह पर रखा गया जहाँ पर मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था.
These properties are remarkably the same as were predicted by Mendeleev. ये मेंडलीव्स की पीरियडिक टेबल है। आप देख सकते हैं कि ये 12 हॉरिजॉन्टल रोजेज हैं जिनको उन्होंने पीरियड्स का नाम दिया गया, और ये 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप्स का नाम दिया गया। ठीक है। Defects in Mendeleev's periodic table. There are 3 places of elements. Elements of higher atomic masses placed before elements of lower atomic masses. Argon placed before potassium. Cobalt placed before nickel. Tellurium placed before iodine. 3 जगह पर एलिमेंट्स मेंडलीव की जो पीरियडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को इसके बताए हुए एटॉमिक जो पीरियडिक लॉ है उसकी इनहराफी की गई और उनको रखा गया, क्योंकि उन्होंने जो लॉ दिया था कि जिस एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, मींस कि जिसका एटॉमिक वेट कम होगा वो पहले आएगा, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा वो बाद में आएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा, हालांकि आर्गन का एटॉमिक वेट ज्यादा है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट कम है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 59.9, जिसको इन्होंने निकल से पहले रखा, हालांकि निकल का जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है वो 58.6 है। मींस के निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, लेकिन कोबाल्ट पहले रखा, निकल को बाद में रखा। टेल्यूरियम 126.6 प्लेस्ड बिफोर आयोडीन 126.9, 127.6 टेल्यूरियम का वेट ज्यादा था, मास ज्यादा है, उसको इन्होंने आयोडीन से पहले रखा। मींस कि इन्होंने जो पीरियडिक लॉ दिया था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, मींस कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के हिसाब से रखेंगे तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। मींस कि एलिमेंट्स अरेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। उसके बावजूद इन्होंने 3 जगहों पर एलिमेंट्स की जो तरतीब थी वो उनके लॉ के मुताबिक नहीं थी। नो प्लेसेस फॉर आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स, आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं है। आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसके लिए कोई भी जगह नहीं थी। अगर हम एटॉमिक मासेस के हिसाब से रखें, सपोज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, तो फकत हाइड्रोजन को रखने के लिए कम से कम इनको 3 स्पेसेस चाहिए, क्योंकि तीनों जो आइसोटोप्स हैं उनके एटॉमिक वेट्स अलग अलग हैं, जिसकी वजह से उनको 3 स्पेसेस चाहिए। इसीलिए आइसोटोप्स के लिए इसके लॉ में कोई गुंजाइश नहीं थी। Similar elements were placed in different groups and dissimilar elements placed in same group. Coinage metals were placed with alkali metals. ये आप देख सकते हैं कि ये coinage जो metals हैं, ये देखें कॉपर है, सिल्वर है, ये गोल्ड है, इनको अल्कली मेटल्स में रखा गया है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये अल्कली मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती हैं, लेकिन कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की प्रॉपर्टीज इससे मैच नहीं करती। ठीक है। इसी तरीके से कुछ एलिमेंट्स हैं जिसकी प्रॉपर्टीज सेम है, डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया, जैसे लेड और कार्बन। कार्बन और लेड जो है वो सेम ग्रुप में रखा गया है। हाँ बिल्कुल, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच कर रही है। इट फेल्ड टू गिव आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिस उसके अलावा ये जो लॉ था या इसकी जो पीरियडिक टेबल है मेंडलीव्स की, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के आइडिया को डेवलप नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ये इस आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर से के हिसाब से बिल्कुल फेल हो चुका है। तो मेंडलीव की जो पीरियडिक टेबल है, मेंडलीव के हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए।
So dear students, this is my first lecture. In this lecture, I have spoken about periodic classification, Dobereiner triad, Deuclid's law of octave, Mendeleev's classification, Mendeleev's periodic law, defects in Mendeleev's periodic table, advantages in Mendeleev's periodic table, or importance of Mendeleev periodic table. In the next lecture, I will discuss about modern periodic law and long form of periodic classification. Thank you so much and Allah Hafiz.